Hello everyone, this is the third video of chemical kinetics and in this video we are going to discuss integrated rate law expression. तो देख लेते हैं कि क्या होता है integrated rate law expression. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे integrated rate law expression for zero order reaction. तो अगर यहाँ पे अगर मैं if R denotes the concentration of reactant, so you can say that rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants raised to power their stoichiometric coefficient, and that is order of reaction, that is n. Now for zero order reaction, ये आपको पता है, this is the rate law expression. So rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant raised to power n. N is order of reaction. Now here the value of n is 0, so you can say rate equal to k into concentration of R raised to power n, or you can say rate is equal to k into concentration of R raised to power 0, or you can say rate of reaction. Now rate of reaction क्या होता है? Rate of reaction is change in the concentration of reactant, that is minus dR by dt is equal to k into R raised to power 0, that is 1. तो ये यहाँ से आपका एक्सप्रेशन बन गया किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए. नाउ हम लोगों को इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है. तो व्हाट विल वी डू? माइनस डी आर इक्वल टू के डी टी. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो व्हाट विल हैपन? माइनस इंटीग्रल डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रल के इंटू डी टी. तो दैट विल बिकम डी आर का, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी आर? इट विल बिकम माइनस आर is equal to k is a constant, so k will remain as it is, and what is the value of, what is the integration of dt? That is t, and plus c. c कहाँ से आया? c is integration constant. अब first of all we have to find the value of this integration constant, and how will we find the value of this integration constant? So we will put initial condition. So initially t equal to 0, टाइम शुरू में क्या रहा होगा? 0 रहा होगा, और इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मान लेते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय आर नॉट. सो लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1. सो पुटिंग दिस वैल्यू और पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. So put these values in equation 1, the value of t equal to 0 and the value of r equal to r naught. Remember, r naught is the initial concentration, so that is minus r naught is equal to k into 0 plus c. So c is equal to minus r naught. ये minus r naught c की वैल्यू मिल गई आपको. Now putting value of c in equation 1. अब equation 1 में c की वैल्यू पुट कीजिए. So what will we get? Minus r is equal to kt minus r naught. Move r naught to left hand side, so r naught minus r is equal to kt. So you can say t is equal to r naught minus r by k. This is the rate law expression, integrated rate law expression for zero order reaction, or you can say कि k is equal to r naught minus r by t. So this is the rate law expression for zero order reaction. So hope you have understood it. Now we will talk about the next topic, that is half life. So the thing is, what is the meaning of half life? हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? तो जनरली हम लोग हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट को समझते नहीं हैं. हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में जो किसी भी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है. तो हाफ लाइफ ये मत सोचिए आपकी जो कंसंट्रेशन
पूरा टाइम जो किसी भी रिएक्शन को होने में लगता है उसका हाफ टाइम होगा, नहीं, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें उसका कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है। मान लीजिए कि अगर किसी का कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन 5 है तो जो उसका हाफ लाइफ होगा, इसका हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ वो टाइम होगा जितने में उसका कंसंट्रेशन 5 से 2.5 हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ? हाफ लाइफ इज़ द टाइम पीरियड in which the concentration of a reactant becomes half of its initial concentration। तो हम लोग यहाँ से हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कैसे? नाउ कैसे कि एट, मान लेते हैं हाफ लाइफ को हम लोग किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं, टी हाफ से। तो एट टी इक्वल टू टी हाफ, एट टी इक्वल टू टी हाफ, अगर टी जो टाइम पीरियड है वो हाफ लाइफ के बराबर होगा तो आर की वैल्यू, कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हाफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज आर नॉट, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, आर नॉट बाय 2। नाउ लेट अस से दिस इज इक्वेशन 2। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ टी एंड आर इन इक्वेशन 1। सो पुट द वैल्यू ऑफ टी एंड आर इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, टी हाफ विल बी इक्वल टू, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी हाफ आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2 अपॉन के, और टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट माइनस हाफ ऑफ आर नॉट, दैट इज आर नॉट बाई 2, सो दैट इज आर नॉट बाई 2k। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये ऑर्डर पे डिपेंड करती है, टी की वैल्यू भी। टी यहाँ पे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ, और ये क्या है, ये किसी भी टाइम इंटरवल पे अगर आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या आर आपको कंसंट्रेशन दिया है किसी भी टाइम पे, आपको टाइम कैलकुलेट करना है, फॉर दैट यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो ये आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया, और ये आपके लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो गया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो आर नॉट की वैल्यू है और जो टी हाफ की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, ये आर नॉट हो गया रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और ये हो गया टी हाफ। तो डायरेक्ट रिलेशन है, यू कैन सी दिस इज़ द रिलेशन। अगर आप ग्राफ बनाना चाहें टी हाफ और आर नॉट के बीच में, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो होप कि आपको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन और हाफ लाइफ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो एज यू कैन सी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इफ आर इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज़्ड पावर n, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट, दैट इज माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ n विल बी 1। सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी माइनस डी आर, आर को इधर लेके आ जाइए, आर रेज़्ड पावर 1, इट विल बिकम आर इक्वल टू के डी टी। नाउ व्हाट विल यू डू, अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, फिर से दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कीजिए। सो व्हाट विल यू गेट फ्रॉम हेयर, यू विल गेट माइनस डी आर बाय डी, और यू कैन से आर इज इक्वल टू इंटीग्रल के डी टी। तो इंटीग्रेट करेंगे, आपको पता है माइनस डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग, और हियर वी विल गेट लॉग नेचुरल एल एन माइनस एल एन आर इज इक्वल टू के इज अ कॉन्स्टेंट डी टी का टी प्लस सी। सो दिस इज द इंटीग्रेशन। नाउ अगेन you know that initially, because we have to find the value of c here, so you know that initially the value of t is equal to 0 and the value of r is equal to r naught. R naught is the initial concentration. So putting, so let us say this is the equation 3.
So putting these values in equation 3. So what will we get from here? That is minus ln r naught is equal to k into 0 plus c. So from here we got c, that is ln r naught. Again putting value of c in equation 3. वापस c की वैल्यू पुट कीजिए. So what will you get? Minus ln r is equal to kt minus ln r naught, or you can say move ln r naught to RHS, तो ln r naught minus ln r is equal to kt. Log a minus log b, that is log a by b. So ln r naught by r is equal to kt, और you can say ln को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग log में. So it will become, log में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? It will become 2.303, क्योंकि 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर ln को हम लोग log में कन्वर्ट करेंगे. log r naught by r is equal to kt, or you can say t is equal to 2.303 by k log r naught by r, where r naught is the initial concentration and r is the concentration at time t. So this is the rate law expression, integrated rate law expression for first order reaction. Let us say this is the equation 4 that you have. तो this is equation 4. तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए इसको. अगर आपको कहीं पे भी समझने में प्रॉब्लम होती तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाफ लाइफ. हाफ लाइफ फॉर व्हाट? हाफ लाइफ फॉर दिस रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों को रेट लॉ एक्सप्रेशन मिल चुका है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जस्ट इस इक्वेशन में, क्योंकि आपको पता है अगर हम लोग t इक्वल टू टी हाफ लाइफ होगा तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r इक्वल टू r नॉट बाई 2, दैट इज द हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन एट t इक्वल टू टी हाफ. तो बस ये वैल्यूज, पुटिंग दीज वैल्यूज इन equation 4. So what will you get from here? From equation 4, t half is equal to क्या हो जाएगा? 2.303 by k log r naught by 2. r naught cancel, so 2 will move to the numerator. So you can say t half equal to 2.303 by k log 2. The value of log 2 is 0.3010. So t half is equal to 2.303 into log 2, that is 0.3010, that is approximately equal to 0.693 or 0.694 by k. तो ये वैल्यू हो गई किसके लिए? t half के लिए for first order reaction. So this is the value of half life of first order reaction. तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा. You can see that t half does not depend on r naught. इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती नहीं, केवल k पे डिपेंड करती है. तो इनिशियल कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी हो, फॉर एनी रिएक्शन द हाफ लाइफ विल रिमेन एज इट इज, सेम ही रहेगा. मतलब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 10 है तो 10 से 5 होने में उतना ही टाइम लगेगा जितना अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है उसको 50 होने में टाइम लगेगा, क्योंकि हाफ लाइफ सेम रहेगी, वो के पे डिपेंड करती है. और के किसी भी रिएक्शन में के की जो वैल्यू होती है किसी गिवन टेम्परेचर पे वो कांस्टेंट होती है. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, जबकि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन. तो होपफुली कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. अब हम लोग जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के. एज यू कैन सी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन
t equal to r naught minus r by k and for first order reaction t equal to 2.303 log r naught by r, जो कि हम लोग अभी डिराइव कर चुके हैं. Now we will plot a graph between two quantities. कौन कौन सी quantities? R that is concentration of reactant and T that is time. तो आपको जो इक्वेशन ध्यान में रखनी है, दिस इज द इक्वेशन. सो T इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई के. सो यू कैन से के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर. मूव आर टू दैट साइड एंड के टी आर नॉट टू लेफ्ट हैंड साइड एंड के टी टू राइट हैंड साइड. सो यू कैन से आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट. तो इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए द इक्वेशन ऑफ लाइन से, दैट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सी इज अ कॉन्स्टेंट. सो y एक्सिस पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे r है. x एक्सिस पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे t है. ओके, c क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है r नॉट. तो t की वैल्यू, अगर आप t की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी r नॉट. मतलब इनिशियली जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा दैट इज इक्वल टू r नॉट. नाउ अब आप देख रहे हैं यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इन दोनों को कंपेयर कीजिए. सो x इज दिस, इसका मतलब m की जो वैल्यू होगी m इज माइनस के एंड c इज r नॉट. c होता है आपका y इंटरसेप्ट. तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपकी लाइन की इक्वेशन हो गई. तो यहाँ पे स्लोप देख सकते हैं, स्लोप इज नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप हो जाएगा. तो नेगेटिव स्लोप होगा तो लाइन डाउनवर्ड्स होगी. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. सो लाइन विल गो डाउनवर्ड्स. तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्लोप क्या होगा लाइन का. तो यहाँ पे ध्यान रखिए, स्लोप जो होगा लाइन का, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के. स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के. सिमिलरली हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी ये काम कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग फिर से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं किसके बीच में, रेट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. सो एज यू कैन सी, तो 2.303 को उधर डिवाइड कीजिए पहले, t बाय 2.303 इज इक्वल टू, इट विल बिकम, और यू कैन ऑल्सो प्लॉट द ग्राफ बिटवीन log r naught, it will become log r naught by r, that is equal to log r naught minus log r. so log r को उधर लेके जाइए. so log r is equal to माइनस t को इधर लेके आ जाइए, t अपॉन, और हमारे पास एक और टर्म थी यहाँ पे k भी थी हमारे पास. so k को आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज kt. so माइनस t बाय, और यू कैन से माइनस के टी बाई 2.303 प्लस लॉग आर नॉट. तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y की जो वैल्यू आ रही दैट इज़ नॉट r, दैट इज़ लॉग r. तो हमको r से के साथ नहीं लॉग r और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है. तो आप देख सकते हो m की वैल्यू सेम जैसे पिछले में था. The only difference is we are plotting graph here between log r and t. तो सेम हो जाएगा. यहाँ पे जो वैल्यू होगी इनिशियल दैट इज r नॉट या log r नॉट. जब आप t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो log r इक्वल टू हो जाएगा log r नॉट. और जो स्लोप होगा ग्राफ का, स्लोप इज दिस, दैट इज m. x की वैल्यू क्या है, t. m की वैल्यू क्या है, माइनस के. तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के बाई 2.303 प्लस सी कांस्टेंट. ये आपका मिल गया, दैट इज लॉग आर नॉट. तो होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी टॉपिक समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, या फिर आप कमेंट में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.